Good morning students, this is JK video. Today we are starting with the chapter number 19, Look Alike, and in this chapter you are going to understand about some same animals which look same but they have special features which makes them different. Clear? They look like same but they have the different features or the specialities which make them different. Clear? So some are turtle and tortoise, frog and toads, hare and rabbit, and crocodile and alligator. So it is on page number 30. So I will explain the chapter. Here you don't have to write anything. It is not a written part of your chapter. So just listen the video carefully and I will ask the question regarding this chapter and you will answer it in the classroom, means in the WhatsApp class, right? So let's begin with the description and explanation of this chapter. It is on page number 30. So Look Alike, chapter name is Look Alike and the chapter number is 19. So students, this is your 19 chapter. Look Alike means some animals are looking same but have different features. So today we are understanding about the two different features of same looks. Clear? So sometimes two animals are so similar in appearance that we cannot distinguish between the two. कभी कभी दो एनिमल्स सेम दिखते हैं लेकिन हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लुक्स ही सेम होते हैं, सेम ही दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही स्पीशीज़ हैं. बट डोंट यू वरी बिकॉज देयर इज़ here is in this chapter we are going to look at four such set of animals. These animals may look the same but there is a lot of difference between the two. So today we are going to understand on this, right? First is turtle and tortoise. Both are looking same, right? Turtles and tortoise. So what is the difference between them? Today you don't have to write anything, just you have to understand. Clear? I will ask the questions and you have to answer it in the classroom. Both turtles and tortoise are reptiles of the same family. Turtles और tortoise दोनों reptiles हैं और same family को belong करते हैं. However, while tortoise live on land and a turtle capable of living on land as well as in water. tortoise जो रहता है, ठीक है, टोटोटॉइस सिर्फ लैंड में रहता है, ठीक है, लेकिन ये है टोटोटॉइस और ये है ये है टर्टल और ये है टोटोटॉइस. सो टोटोटॉइस सिर्फ लैंड में रहता है और टर्टल जो है वो लैंड और पानी दोनों जगह रह लेता है, ठीक है. टोटोटॉइस हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 80 to 150 ईयर्स. टोटोटॉइस का लाइफ स्पैन जो है वो 80 to 150 ईयर्स तक है. वो 80 से 150 साल तक में ज़िंदा रहता है, ठीक है. वाइल द टर्टल लिव्स फॉर एन एस्टिमेटेड 20 to 40 ईयर्स. लेकिन टोटोटॉइस का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है, वो 20 से 40 ईयर्स ही ज़िंदा रह पाता है. द शेल ऑफ द टोटोटॉइस इज़ हैवियर देन दैट ऑफ द टर्टल. टोटोटॉइस की जो शेल है वो बहुत हैवी होती है as compared to turtle, ठीक है. The reason behind that is that turtle need light body weight to help it to swim in water. turtle को light weight body चाहिए, क्यों? क्योंकि वो swim करना चाहता है पानी के अंदर भी. पानी के अंदर अगर वो swim कैसे करेगा? जब उसकी बॉडी बहुत लाइट वेट होगी, ठीक है. While a tortoise need extra protection while moving on land. और लैंड में अगर मूव कर रहे हैं तो ऊपर से कोई भी आ सकता है, कोई भी उसको खाने की कोशिश कर सकता है, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, उसके अंदर छुपा लेता है, ठीक है, शेल के अंदर. तो ये है इन दोनों के फीचर्स. नाउ सेकेंड वन, फ्रॉग्स एंड टोड्स. फ्रॉग्स एंड टोड्स. सो दिस इज टोड एंड दिस इज फ्रॉग. सो बोथ ऑफ देम आर एम्फीबियन एंड आर सिमिलर इन मैनी वेज. दोनों एम्फीबियन कहलाते हैं.
एम्फीबियन कौन है? जो लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। However, while frogs spend most of their lives in or near water, जो आपके फ्रॉग हैं वो ज़्यादातर अपना लाइफ कहाँ गुजारते हैं? पानी के अंदर या फिर पानी के आसपास। टोड ऑन द अदर हैंड लव्स द लैंड अ लिटिल मोर, लेकिन टोड का क्या है? वो लैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, ठीक है। तो लैंड में ज़्यादा रहना पसंद करता है। फ्रॉग हैज़ द मॉइस्ट स्लाइमी बॉडी स्किन वाइल टोड्स हैव द बम्पी एंड ड्राई स्किन। फ्रॉग को आप देखेंगे उसमें मॉइस्ट और स्लाइमी बॉडी दिखेगी, फिसलने वाली बॉडी दिखती है उसकी, ठीक है। लेकिन टोड का बिल्कुल स्किन ही अलग है। टोड के बम्पी बॉडी है, बम्पी मतलब उसके उबड़ खाबड़ सी स्किन है और ड्राई स्किन है, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चरनेस नहीं दिखेगी, मॉइस्चर नहीं दिखेगा। फ्रॉग ऑल्सो हैज़ लॉन्गर लेग्स एज़ कम्पेयर टू टोड्स। फ्रॉग के लेग्स बहुत ज़्यादा लंबे, मतलब एज़ कम्पेयर टू टोड लंबे होते हैं। और अ फ्रॉग ऑल्सो हैज़ अ लॉन्गर टंग, और फ्रॉग के पास लंबी जीभ भी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉग्स एंड टोड्स। नाउ हेयर्स एंड रैबिट्स, ये होते हैं हेयर, ये होते हैं रैबिट। रैबिट वाइट कलर का होता है, ठीक है, ये थोड़ा ब्राउनिश में होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट रैबिट एंड हेयर बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज़। आपको ये चीज़ की सरप्राइज़ होगा कि रैबिट और हेयर दोनों अलग अलग स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, दोनों एक फैमिली के नहीं हैं। बेबी रैबिट आर बॉर्न इन हेयरलेस एंड विथ क्लोज्ड आइज़। बेबी जो रैबिट होते हैं वो बॉर्न कब, वो उनके ऊपर जो है फर नहीं आते हैं, बाल नहीं आते हैं, और वो क्लोज्ड आइज से जन्म लेते हैं, ठीक है। वाइल बेबी हेयर आर बॉर्न विथ फर एंड विद द ओपन आइज। बेबी हेयर जब बॉर्न करता है तो वो फर के साथ और ओपन आइज़ के साथ वो जन्म लेते हैं, ठीक है। कैन मूव ऑन देयर ओन, और वो इधर उधर मूव भी करते हैं अपने ही तरीके से। हेयर आर लार्जर देन रैबिट एंड हैव लॉन्गर ईयर्स। हेयर के पास लार्जर बॉडी होती है और बड़े कान भी होते हैं, इनके छोटे कान होते हैं, ठीक है। रैबिट मेक देयर होम्स इन द बोरोज अंडरग्राउंड वेयर द हेयर मेक नेस्ट अबव द ग्राउंड। रैबिट जो है वो होल्स में रहते हैं, ज़मीन के अंदर होल्स करते हैं और उनमें रहते हैं, लेकिन हेयर क्या करता है? अपना खुद का घर बनाता है, ठीक है, जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है। नाउ ऑल्सो रैबिट लिव्स इन ग्रुप वाइल हेयर डो नॉट क्वाइट सोशल। रैबिट जो है वो ग्रुप में रहते हैं, उनके चारों तरफ आप देखेंगे 3-4 रैबिट घूम ही रहे होंगे, लेकिन जो हेयर है वो क्या करते हैं? वो अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है, उतना खास पसंद नहीं करते हैं आपस में घुलना मिलना। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर में देखेंगे क्या डिफरेंस है। दिस इज़ क्रोकोडाइल एंड दिस इज़ एलिगेटर। सो बोथ क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर द लार्ज रेप्टाइल्स। दे मे लुक सेम बट अपॉन क्लोज इंस्पेक्शन यू कैन नोटिस द डिफरेंस। बहुत ही इसको क्लोजली देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल है, क्योंकि इनमें ज़रा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, ठीक है। क्रोकोडाइल इज़ लार्जर देन एलिगेटर एंड हैव वी शेप्ड स्नाउट वेयर एज एलिगेटर हैज़ यू शेप्ड स्नाउट। सो क्रोकोडाइल जो है वो लार्जर होते हैं एलिगेटर से, क्रोकोडाइल एलिगेटर से बड़े होते हैं, ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो वी शेप होती है। ये जो पेट दिख रहा है ना, स्नाउट का मतलब पेट है, ठीक है, जो मतलब हेड के नीचे के वाली जो चीज़ को स्नाउट बोलते हैं। तो ये जो बॉडी का देखेंगे हिस्सा, ये क्या है? वी शेप में आपको दिखेगा, किसके? क्रोकोडाइल के। लेकिन एलिगेटर के यू शेप में दिखता है, ठीक है। तो ये चौड़ा हो जाता है और ये ऐसे ऐसे वी शेप में आता है, ठीक है। तो ये यू शेप में आते हैं, ये वी शेप में होते हैं, बस यही डिफरेंस है। क्रोकोडाइल टीथ आर विजिबल इवन देयर माउथ इज शट। क्रोकोडाइल का मुंह अगर बंद भी है तो भी उसके टीथ विजिबल होंगे, दांत विजिबल होंगे, लेकिन एलिगेटर हुज टीथ रिमेन हिडन व्हेन देयर माउथ इज क्लोज्ड। और एलिगेटर के क्या होते हैं? जैसे ही वो मुंह बंद होता है उनका, वैसे ही वो टीथ भी छुप जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
crocodile and alligator. I hope you all have understood about the difference between these all four, and if you have any doubt you can ask in the class, and I will ask the questions related to this chapter in your WhatsApp class. Thank you so much.